Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So starting with our analysis for 23rd of January 2024. So 22nd January, we saw the inauguration of the Ram Temple at Ayodhya, and Prime Minister calls it a historic day. So we talk about Ram Rajya. We have talked about what are going to be the characteristics. For example, talk about it reflects our the firstly and the most important thing is our culture, our heritage, and it reflects sovereignty, integrity, and we wish that जो हम बोलते हैं राम राज्य कैसा होना चाहिए, so it needs to be equitable for all the people, for all the residents of India. It needs to be again compassionate, और जो हम ethical ideas की बात करते हैं. So that's how we visualize it. We will talk about कि there should be less income inequality, there should be more, can say, progressive ideas as we are seeing in terms of infrastructural development, in terms of capital expenditure, more job creation, permanent jobs, I should say. So, main sanctum sanctoria, we can see the idol has been placed and 8,000 gates were there. So, upholding the dignity of law and justice. The Chinese vessel in Indian Ocean now heading to Maldives. So, as we were talking about our apprehensions as far as the Maldives and Chinese relationship is concerned, so we can see increasing presence of China in and near Maldives. So it is believed, China says that it is going to be a research vessel. So the name is Xiangyang Hong O3. So open source intelligence, observers and maritime tracking portals. तो हम बोल सकते हैं maritime security के लिए these are two tools which we can say which are helpful in terms of gathering maritime intelligence. And with this, when we talk about the Indian Ocean Rim Association, IORA, and BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So we should remember in BIMSTEC, Myanmar is a part of it, but it is not a part of IORA. And at the same time, again, other two countries also includes Bhutan and Nepal. So even they are also not a part of IORA. And when we think about the opposite, so Maldives, it is a part of IORA, but it is not a part of BIMSTEC. So this can be helpful in prelims examination. So an important factor that Jakho temple, it is there in the state of Himachal Pradesh. So Clean Ganga mission talk about cleaning river Yamuna. So firstly, we see the presence of heavy metals in the water bodies in the rivers. And with that, we've been talking about the waste to treatment plants also, how they can help us. So specifically, this is in the context of Delhi, that would be helping. And third important thing we can say कि BOD जो examination में भी आ चुका है, biological oxygen demand, it is for it reflects, you can say, the organic waste के context में, और chemical oxygen demand is there for inorganic waste. So this is an, we can say, critical difference between these two. So biological oxygen demand is, we can say, when it is increasing. So it reflects that the amount of pollution in the water is also increasing, because it is getting difficult for the marine life and living things which are present underwater to breathe, to intake oxygen. So here one parameter is given that the water treated at the upcoming plant, it will have a BOD of 10 milligram per liter. So BOD, मानसिटी इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो नीडेड होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए. तो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कितना ज़्यादा पोल्यूशन होएगा उतनी ही ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगी. हाँ हाँ, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन पॉल्यूशन एंड BOD.
डायरेक्टली रिलेटेड है. हाँ एंड जी. it indicates amount of dissolved oxygen which is consumed by even bacteria, other microorganisms while decomposing any organic matter. तो एक ये मैंने बता दिया organic और inorganic. Inorganic is for COD, chemical oxygen demand. So lower the BOD, better the quality of water sample. So we talk about that ED, it is a statutory body which is under the PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act. And as we talk about that CBI, it requires a grant or a permission from the state. In case of ED, that is not required. जो general consent हम term use करते for CBI. So for ED, they do not require any such kind of, you can say, permission before entering the state for the investigation. So Anganwadi centers, ASHA workers, again, we say that they act as a catalyst as far as the governance at the local level is concerned. So good governance and their role as a catalyst is very important. In terms of, we talk about the Indradhanush program, which is about vaccinating the children, their role becomes important in dealing with the challenge of nutritional security, and also in terms of in nutritional security with respect to the pregnant women and the lactating mothers and also the children. And with this also the pre-primary education in the rural areas for the children. So Poshan Abhiyan mein they have an important role. So that's how we can talk about. And also in terms of spreading awareness also, they can because the door-to-door services can be provided by them, so they can also run the awareness campaigns. So we are having the in the Anemia Mukt Bharat strategy also. So in that also their role is important. So issues अगर हम बात करते हैं आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो firstly there is no one defined amount of the income that they will be paid, and they are like informally they are employed, they are not considered to be a part of the formal sector, so that is the second concern. So they are not also having the benefit of social security. So this we can talk about कि जब आपकी flight tickets cancel होती है तो उसके regarding जो compensation है, you should get that settlement on timely basis, and कितना amount आपका refund हो सकता है. So यहाँ पे इसको हम as a part बात कर सकते हैं of reforms in the civil aviation sector. बाकी हमने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करी थी, BCA, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अदर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and there's one more regulator, I'm forgetting the name, Directorate General of Civil Aviation. So these are three important stakeholders as far as the civil aviation sector is concerned. So we can see that Anganwadi workers, they are protesting, and here we can talk about, so right to protest is a fundamental right under the Constitution of India, but right to strike is not. Then when we talk about as a case study, so the role of SHO, station house officers, that becomes important. And the SHOs in terms of maintaining the security while they are protesting from that perspective. So here we saw that SHOs of many police stations, they have served the notices on the Anganwadi worker, directing them not to participate in the Chalo Vijayawada rally, because it is believed that there is no prior permission for this. So Vijayawada, again, it is an important region. I think this is there in Andhra Pradesh. So tax contribution by the states
needs to be revisited. So we can say that this is an important topic when we talk about cooperative federalism and at the same time competitive federalism. So competitive federalism would be between state and state, and cooperative would be states and center. So financially, we've been talking about top-down devolution, that finance commission, it is important, plays important role and function for the tax devolution to the states. So states have been demanding more amount of funds and finances because they feel that they have to rely more upon the borrowings in order to meet their needs as far as the expenditure is concerned. And in short term also, it is a challenging task for them to rationalize the revenue expenditure. So for that, that is one part that we've been talking about from the perspective of top-down approach. Now, when we talk about bottom-up approach, so here we're talking about कि states के tax contribution कैसे और increase कर सकते हैं. सो स्टेट अपने लेवल पे और कैसे से सस्टेनेबल हो सकती है फाइनेंशियली, वो कैसे अपना टैक्स रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. सो है वी टॉकिंग अबाउट दैट. सो इक्विटी एफिशिएंसी इन टैक्स रेवेन्यू ट्रांसफर. सो यहाँ पहले टॉप डाउन की बात हो रही है, फाइनेंस कमीशन के रोल की बात हो रही है. सो टू इम्पोर्टेंट टास्क फाइनेंस कमीशन के क्या होते हैं. पहले तो दे रिकमेंड कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ यूनियन टैक्सेस असाइन होना चाहिए स्टेट्स को. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग रहेगी कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करते हैं, उनका रोल एडवाइजरी होता है. देयर रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग. सेकेंडली, जो रिकमेंडेड शेयर होता है ईच स्टेट का इन द असाइंड टैक्स रेवेन्यू, तो दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय देम. दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए. सो 10th फाइनेंस कमीशन तक की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अप टिल 2000, तो स्टेट्स का शेयर सिर्फ इट वाज रिस्ट्रिक्टेड के जो पर्सनल इनकम टैक्स से फंड जनरेट हो रहा है सेंटर के पास और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज. एंड आफ्टर दैट ऑल जो सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज थे दे वर पूल टुगेदर. जो हम सेंट्रल पूल की बात करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं सेंट्रल पूल, मतलब जो सेंटर एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पूल जो उनके पास रेवेन्यू आता है उसको हम सेंट्रल पूल बोलते हैं. और उसको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. तो इस टाइम पे अप टिल 2000 ये तीन टैक्सेस के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. पर्सनल इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड देन सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज, दे वर पूल्ड. देन इक्विटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की. सो इक्विटी स्टिपुलेट्स की रेवेन्यू स्कार स्टेट्स जो हैं और स्टेट्स जिनके पास हायर एक्सपेंडिचर हैं, दे गेट द लार्जर शेयर ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू दैन दी अदर्स. इक्विटी मीन्स की सी यहाँ पे डिफरेंस है इक्वालिटी एंड इक्विटी में. तो इक्विटी वुड बी की ब्रिंगिंग ऑल द पीपल, और यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें ऑल द स्टेट्स ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड. अगर किसी स्टेट को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो उनको ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा, अगर किसी को कम अमाउंट की जरूरत है तो उनको कम फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा या डिवॉल्व दिया जाएगा. सो दिस इज व्हाट इक्विटी मीन्स. इक्वालिटी मीन्स की आप सभी प्लेयर्स को, सभी स्टेट्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हो. मतलब कि आपने पहले एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट देना चाहिए और आप इररिस्पेक्टिव के स्टेट को कितना चाहिए सेम अमाउंट हर एक स्टेट को दे रहे हो, तो वो हो जाएगा इक्वालिटी. सो इसीलिए वी टॉक अबाउट कि इक्विटी को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए. एंड इसका एक और एग्जांपल जो हम बात करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन विच इज प्रोवाइडेड. सो यहाँ पे इक्विटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक स्टेट ऐसी है कि रेवेन्यू स्कार्स, जो रेवेन्यू स्कैरसिटी है वो बहुत ज्यादा है और एट द सेम टाइम उस स्टेट की एक्सपेंडिचर्स भी कंपैरेटिवली हायर है, तो उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए. एंड एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो द स्टेट्स विच आर एफिशिएंट, जो अपना खुद टैक्स रेवेन्यू एफिशिएंटली कलेक्ट कर पा रहे हैं और अपनी स्पेंडिंग को भी रैशनलाइज कर रहे हैं, सो वहां पे भी हम बात करेंगे कि efficiency is also playing its important part. तो ये बोल रहे हैं कि efficient states जो हैं, ये efficiency भी एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए फाइनेंस कमीशन के अंडर, कि अगर कोई स्टेट एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है तो उनको एफिशिएंसी के बेसिस पे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए. तो अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ आ जाता है एफिशिएंसी, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसको ज्यादा वेटेज दोगे, एफिशिएंसी को कि इक्विटी को. तो ये हो गया नॉर्मेटिव साइंस का जब हम बात करते हैं. एंड इट रिमेन्स डायनेमिक इन सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस. तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर और हमने फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करी.
एंड इसके अलावा तो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट इज अ गुड मेजर ऑफ एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी अगर हमें मेजर करनी है तो सिंपली हम एक स्टेट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे डेटा एनालिसिस के थ्रू कि उनका टैक्स रेवेन्यू हाउ हैज़ बीन द ट्रेंड। तो उससे हमें एफिशिएंसी पता लग सकती है इन टर्म्स ऑफ विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट। टैक्स रेट उतना ही रखा, उसके बाद कैसे रेवेन्यू फ्लक्चुएट हुआ है। And the GST regime creates an opportunity for its inclusion in the distribution formula. So यहाँ efficiency को include करने की बात की जा रही है in the Finance Commission's distribution formula. So Finance Commission ने कितनी weightage assign करी है to efficiency? It has been between 10% to 20% to the efficiency indicator. तो उसकी और weightage increase करने की बात कर रहे हैं and population का weightage है 80 to 90%। मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनको ज्यादा फंड्स मिलेंगे। तो इसलिए ये भी एक पार्ट ऑफ डिबेट हमेशा रहा है, कंसर्न रहा है सर्दर्न स्टेट्स का कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है द पॉपुलेशन फ्रंट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, बट उनको उस चीज के लिए रिवॉर्ड नहीं, उनको उस चीज के लिए एज अ पनिशमेंट मिली है क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन कम होगी कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, तो उनको फंड्स भी कम मिले। तो टैक्स कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में, यहाँ पे भी बात हो रही है। तो एक एफिशिएंसी हमने थोरली कवर किया, इक्विटी की हमने बात करी, इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ की बात करी। एंड टैक्स एफर्ट इट इज अफेक्टेड बाय द डिस्क्रिशनरी टैक्स पॉलिसीज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द एक्चुअल टैक्स बेस। तो ये टैक्स रेवेन्यू या तो टैक्स बेस में चेंजेस होंगे या टैक्स रेट में चेंज किया जाएगा। थर्डली टॉक अबाउट जीएसटी। तो जीएसटी के अराउंड जो कंसर्न्स हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो कि स्टेट्स को अगेन गारंटी प्रोवाइड की गई थी व्हेन जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017 कि एज अ पार्ट ऑफ जितना भी जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद पर्टिकुलर स्टेट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा तो उसको सेंटर कॉम्पनसेट करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। बट वी सॉ कि इन बिटवीन 2020 में देयर वाज कोविड-19 पैंडेमिक, तो सेंटर की टैक्स रेवेन्यू इम्पैक्ट हो गया एंड ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में कि अगर ऐसी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है देन व्हाट वुड द सेंटर बी डूइंग या व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग द कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स। सो ऑन दैट पार्ट सेंटर ने बोला स्टेट्स को कि जितना भी आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो यू कैन बोरो दैट पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये परमिशन दे दी गई। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर सेंटर उनको उतना फंड डिवॉल्व करता तो स्टेट को उसको रीपे नहीं करना पड़ता, बट स्टेट्स अगर बोरो करेंगे अमाउंट तो उनको वो रीपे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से स्टेट के ऊपर और बर्डन और उनका जो फिस्कल डेफिसिट है हर एक स्टेट का वो और ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सो आई होप यहाँ पे हमने जितनी चीजें डिस्कस करी, प्रेरणा, दैट इज क्लियर। दिव्या एंड औशिक ऑल्सो। यस मानसी जी। ठीक है, तो यू कैन टेक डाउन इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यस जी। ओके, आइडिया वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। सो हाउ वी कैन से कि इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, ऑल्दो हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव्स बात कर चुके हैं। सो any action that impinges upon independent constitutional existence of a state by altering the duration of its legislative assembly would naturally be anti-federal and unconstitutional. But here we cannot say this thing absolutely कि it would be altering the duration of the legislative assembly of a particular state. One nation one election, बस बात यहाँ पे ये हो रही है कि एक सिंगल टाइम पीरियड पे स्टेट और जनरल इलेक्शंस वुड बी देयर। सो चैलेंज यहाँ पे ये है कि जो नेशनल चैलेंजेस हैं या जो नेशनली इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है बिकॉज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कंपेयर टू द लोकल लेवल प्रॉब्लम्स। एंड सेकेंडली वी कैन से कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन अगर देयर इज pre-devolution pre-dissolution of a particular state assembly before the completion of 5 years of term. So how who will be able to ensure कि फिर से ही वही one nation one election system follow होगा, तो that would be requiring a lot of, you can say, constitutional amendments also. And
इसके अलावा इट इज बीइंग सेड कि कॉमन इलेक्शन के लिए जो पॉजिटिव में जो लोग फेवर में है, उन्होंने भी बोला कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है comes into effect twice in a 5-year cycle, which affects the seamless conduct of the government business and results in the governance downtime. So, if there will be one nation, one election, more we'll be able to focus more on good governance. जो पॉलिसीज बनाने के लिए पॉलिसी मेकर्स को और ज़्यादा टाइम मिल सकता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम फोकस कर सकते हैं। तो मानसी जी, जैसे हाँ, इसमें फेडरलिज्म की बात हो रही है, तो फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो मतलब रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, हम ऐसे डिफाइन करते हैं मेनली फेडरलिज्म इसको। फेडरलिज्म इज डेवल्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यहाँ पे बात हो रही है, फेडरलिज्म इज हम्म। स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, या जो अभी करंटली जैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उनकी पावर कहीं ना हम्म। कहीं और इम्पैक्ट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, अभी हम्म। जैसे मैंने बोला डेवल्यूशन ऑफ पावर, तो इसका एग्जांपल 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट हम्म। लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो ये रिफ्लेक्ट करते हम्म। हैं, डिफाइन कर दी कि स्टेट इन्हीं सब्जेक्ट्स में डील करेगा, सेंटर इन सब्जेक्ट्स में करेगा, और कॉन्करेंट में दोनों डील कर सकते हैं। तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो फेडरलिज्म इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, मतलब कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो जो नेशनली बातें होती है, नेशनली जो चैलेंजेस हैं, या पैन इंडिया लेवल पे जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इलेक्शन के दौरान, कंपेयर टू कि हर स्टेट के जो लोकल चैलेंजेस है वो भी डिफरेंट है, तो हम्म। उनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी। तो स्टेट्स अल्टीमेटली हम्म। स्टेट्स ही सफर करेंगे, तो इसलिए दिस इज वन वे कि इट वुड बी गोइंग अगेंस्ट फेडरलिज्म। हम्म। और ओके मानसी जी। हाँ, औशिक, आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे, दैट हाउ इट कैन गो अगेंस्ट फेडरलिज्म अपार्ट फ्रॉम दिस? एंड इसके अलावा SR बोमई केस की हम बात करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस है। सो यहाँ पे फर्स्टली तो ये भी फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही है, ये जो केस है। सो SR बोमई, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो ही वाज ऑन अ ट्रिप अब्रॉड एंड ही वॉज इन पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट पीछे से जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व कर दी गई, ये बोल के कि इट डज नॉट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस, एंड उनको एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी या वो एक चांस जो मिलता है ऑफ प्रूविंग देयर मेजोरिटी, देयर कॉन्फिडेंस इन द हाउस, वो भी नहीं दिया गया। सो देन वी हैड द सुप्रीम कोर्ट केस, जिसमें बोला गया कि इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल्सो, दैट जो भी गवर्नमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन इन द लेजिस्लेचर, दे हैव टू प्रूव कि दे enjoy द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। उसके बाद ही यू कैन डिसॉल्व एंड टेक जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है, बट नॉट like arbitrarily, it cannot be done by the governor of the state, and again the speaker of the house है। So fired up and plugged in। सो यहाँ हम बात करें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, एंड जो डिस्कॉम कंपनीज हैं इंडिया में, द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो है वी सी COP 28 की बात की गई, COP 28 विच वॉज हेल्ड इन दुबई। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, आउटकम्स की बात करते हैं आफ्टर दिस मीटिंग, सो वन की इंडिया का जो स्टैंड था कि वी सपोर्ट फेज डाउन एंड नॉट फेज आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। सो second was that it was for the first time that we identified that fossil fuels, they are responsible for the climate change. So this is going to be a critical decade. Spotlight will be on how India decarbonizes its power sector while ensuring इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो साथ में, और हम एनर्जी सिक्योरिटी भी मेंटेन करके चले, वो भी हम और ज़्यादा इंक्रीज करें विद टाइम। सो अब ये चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 3 इसमें फैक्टर्स हैं।
कि फर्स्ट तो हमें फोकस करना है डीकार्बनाइजेशन पे, कार्बन न्यूट्रलिटी जो टारगेट है वी हैव टू मीट दैट बाय 2070। सेकेंडली कि डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। और थर्डली जब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हम बात कर सकते हैं हमेशा। So renewable energy and coal, it will remain vital energy source till it reaches the status of developed country in geopolitically turbulent world. So even because of geopolitical tensions भी energy security एक बहुत बड़ा challenge है आज के time में, because we are dependent upon again fossil fuel, that is crude oil for the energy purposes. So at the same time energy security के लिए renewable energy भी important है। ऑल्सो मानसी दी, हम जो करंट एनर्जी की नीड्स रिक्वायर्ड है उनको भी किसी तरह से हम लोअर कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट बना करके। हाँ, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं रूफ टॉप सोलर प्लांट्स को डिप्लॉय करने की हर एक हाउस होल्ड में। सो वो भी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स को सेल्फ रिलायंट बना सकता है। तो जो आपने बोला कि एनर्जी डिमांड भी थोड़ी और कम हो सकती है, वो इस तरीके से कम हो सकती है, और एफिशिएंसी जो आपने टर्म यूज करा। सो यहाँ पे बात हो रही है दैट इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स। एक तो वो हेल्प कर सकते हैं मिटिगेट करने में नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द न्यू थर्मल एसेट्स टू मीट द पीक पावर डिमांड इन द मीडियम टर्म। सो ये हम बात करते हैं कि ओवर अभी एक टाइम पीरियड तक वी विल बी सीइंग कि हमारी डिपेंडेंस एंड रिलायंस ऑन द कोल थर्मल पावर प्लांट्स इज गोइंग टू इंक्रीज। सो उसको मिटिगेट करने के लिए इट इज बीइंग सेड कि जो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की और पेनिट्रेशन इन दी कैन से दी फार फ्लंग एरियाज, एंड सेकंड यूटिलाइजेशन जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग पर अगर फोकस करेंगे तो जो पीक पावर डिमांड्स हैं वो मीडियम टर्म में हम इजीली मीट कर पाएंगे और हमें न्यू थर्मल प्लांट्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे फिर सेकेंडली बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोल फ्लीट। सो यहाँ पे हमने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हैज बीन इंक्रीज्ड एंड कोल सेक्टर पहले वी यूज्ड टू से कि इट यूज्ड टू बी नेशनलाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, मतलब पब्लिक सेक्टर का ही रोल ज्यादा था, वो ही ज्यादा डोमिनेट करते थे। तो नाउ वी आर सीइंग इंक्रीजिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। एंड कोल माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी लाइक कैप्टिव कोल माइंस में पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर also been allowed, and coal mines they are now like transparently auctioned, we can say online platform using technology. So there is more transparency and accountability in this also, because previously we have seen several scams which have been related to coal, like Coalgate scam is one of them. Then talk about Central Electricity Authority of India. सो यहाँ पे पहले तो हम देख सकते हैं कि वेदर दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी और एंड अंडर विच एक्ट, वो कौन से ईयर में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। तो यू कैन लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज कंसर्न्ड. So they have proposed modifying a retrofitting 92% of the current coal and ignite based capacity to enable it. एंड यहाँ पे बात हो रही है टू इनेबल कि कोल प्लांट्स और कैसे हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उनको, कि वी कैन रिड्यूस देयर मिनिमम पावर लोड एंड इम्प्रूव द रैम्प रेट capabilities. So making the coal power plants more flexible, they are proposing कि जो 92% current coal and lignite based capacity है that can be modified and उसको retrofit कर सकते हैं. For example, the phased plan must be premised on minimizing the grid emissions and renewable energy curtailment for maintaining demand supply balance. सो दो चीज़ों की बात करी कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट तो रेन्यूएबल एनर्जी, इट शुड बी इट शुड बी प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल एज फार एज reducing the demand supply mismatch is concerned. एंड सेकेंडली इट इज सेइंग कि फेज मैनर में जो इवन एमिशंस होते हैं, ग्रिड एमिशंस, जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जो हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से भी जो एमिशंस जनरेट होते हैं वो हम और कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं इन अ फेज्ड मैनर. थर्ड इज सेइंग कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए फॉर
दी स्टोरेज सर्विसेज। सो हमेशा एक तो स्टोरेज हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा स्टोरेज, लोकलाइजेशन ऑफ डेटा के लिए डेटा सेंटर्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और दूसरा है एनर्जी स्टोरेज। सो एनर्जी स्टोरेज में विल बी रिक्वायरिंग मोर नंबर ऑफ बैटरीज, सो दैट इज वाई वी से कि इवन लिथियम बिकम्स अ क्रिटिकल मिनरल। सो बैटरी स्टोरेजेस या जो स्टोरेज सर्विसेज में प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, उनको भी पेमेंट इंसेंटिवाइज प्रोवाइड किए जाने चाहिए, सो दैट more of that infrastructure is created in a shorter time period, and that can also be, ये बहुत important role play करेगा energy security में, and even we can say rationalizing the prices of the electricity also. So standalone battery energy storage systems, BESS, this is, can say, the initiative of the government. This would be needed. And fourth is indigenization पे as we are focusing upon battery storage के लिए भी and renewable energy technologies के लिए. Firstly, this would be helping in reducing the cost also of, for example, the solar modules, which we are again import dependent we have, which is costly also at the same time. And battery storage maybe because it is a part of energy security, so it is going to be strategically important also. So with that also, from the perspective of national security, indigenization is also important. And job creation के लिए भी growth and आत्मनिर्भरता is important. So decarbonization, domestic energy security will drive policy maker focus and investments in India. So तीन area जिससे हमने start किया था, decarbonization, domestic energy security and renewable energy. Government guarantees on a rising trend in 12 states only. So Sikkim, Andhra Pradesh, Telangana government guarantees, अगर हम as a percentage of GDP की बात करते हैं, they have crossed the 10% mark. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्टेट्स की जो फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, एंड उनका ज़्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज हो रहा ऑन दी सेंट्रल फंड्स. सो ये इस वजह से भी हो सकता है. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है ऑफ ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन सेंटर इज कि सपोज स्टेट में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कंपैरेटिवली हाई है, and they're not having sufficient funds to invest into the required in the future projects. तो उस रीजन की वजह से भी सेंटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज हो सकती है. सो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गारंटीज जिनके एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी मानसी जी, इंक्रीज हुई है. जस्ट अ सेकेंड, आपने बोला जीडीपी रेट हाई है, हाई होएगा तब प्रॉब्लम होएगी स्टेट को? हाँ, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जीडीपी रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट को और ज़्यादा पैसा चाहिए अगर उसको उस ग्रोथ रेट को मेंटेन भी करना है, तो उनको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा और कहाँ से आएगा, वो भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट हम्म का जो अपना स्टेट रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू भी है, वो भी उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा है. हम्म तो इसीलिए सेंटर के ऊपर डिपेंडेंस और इंक्रीज हो सकती है फंड्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम्म उतना पैसा, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, तो इसलिए तो दो रीजंस और हो. अगर लो होएगा, अगर जीडीपी लो होएगी तो मतलब टैक्स में इश्यूज आ रहे हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, हाँ, ये लिंकेज भी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट, अब क्योंकि ग्रोथ रेट सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ये भी चीज़ है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनकी किसी एक सेक्टर में ज़्यादा मतलब वर्स अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट परफॉर्म करे तो वो उसकी वजह से भी जीडीपी स्लो डाउन हो सकता है. तो वो खाली टैक्स के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से, हम ये बोल सकते हैं सर्टेनली कि अगर जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है तो इट इज़ फॉर श्योर कि टैक्स टैक्स सेक्टर में कोई ऐसा इशू है. ओके मानसी, थैंक यू। हाँ जी. सो यहाँ स्टेट्स का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो डिपिक्टेड. यू कैन सी कि मार्केट बोरोइंग्स में कितना शेयर है. एनएसएसएफ, एनएसएसएफ लुक फॉर द फुल फॉर्म, इट इज़ द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड. तो उसके ऊपर यू कैन सी कितना अमाउंट जो है स्टेट यूज कर रहा है. देन लोन्स फ्रॉम द सेंटर, इट इज कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, so major is coming from the small savings fund, and then जो market borrowings है 2005-6 का ये डेटा है, तो उस टाइम पे ये सिनेरियो था.
अब आप देखोगे कि कंप्लीटली उल्टा हो गया है। जो स्मॉल सेविंग्स फंड है वो तो नेगेटिव में चले गए हैं, उस वो तो स्टेट्स उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। मार्केट बोरोविंग्स शार्पली इंक्रीज हो गए, तो बोल सकते हैं 78%। जो स्टेट्स डिपेंडेंट है, कहाँ से पैसा आ रहा है, 78% मार्केट बोरोविंग से आ रहा है। देन लोन्स फ्रॉम सेंटर भी इंक्रीज हुआ, पहले ऑलमोस्ट जीरो था, अब यू कैन सी 8.5% शेयर हो चुका है। एंड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रेरणा और डॉक में इसको ऐड कर देना। 2005-06 से और 2022-23। So International Organization of Migration, part of United Nations. So they are launching its first global appeal, seeking to help the people on the move, migrant population, ensure smoother pathways to migration. So even for refugees and other migrant population, International Organization of Migration. Access to the benefits for equal access to benefits for all the SCs. मडिगा कम्युनिटी तेलंगाना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एंड हमने यहाँ बात करी SC/ST कैटेगराइजेशन की। दो सोल पावर, जो फाइनल पावर है, दैट रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट्स दे कैन ओनली रिकमेंड कि कौन सी कम्युनिटी का कितना रिजर्वेशन होना चाहिए और कौन सी कम्युनिटी ST लिस्ट का पार्ट होनी चाहिए, SC/ST लिस्ट का। तो तेलंगाना मडिगा कम्युनिटी हम बात कर रहे हैं। High level committee of secretaries chaired by the cabinet secretary, they will be evaluating and work out क्या method होना चाहिए, equitable distribution of benefits, जो schemes हैं, जो initiatives है, to the most backward communities. So this is an example of, again, जो अभी हम equality और equity की बात कर रहे थे, तो this is equity, level playing field for all the communities, people from coming from different communities. So like Malla community, this is another SC community which is dominant and relatively forward in Telangana. So Madiga and Malla community. So और भी बाकी states का example ले, like Punjab, Bihar, Tamil Nadu, they have also tried to bring reservation state level पे to सब categorize the SC. So ये हमने बात करी थी सब categorization की, कि within SC STs भी जो क्रीमी लेयर है उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, एंड जो उनमें भी बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो सब कैटेगराइजेशन। So it would be also, you can say that minister, home minister, law ministry, tribal affairs ministry, and social justice ministry, department of personnel and training, in addition to the cabinet secretary, these are going to be the members of this committee जो बनाई गई है, will be looking into this matter. So 1994 से डिमांड रेज की गई थी by the Madigas. So National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. So here if Oshik can add important details about these committees. I think these are constitutional committees. NCBC भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, इट वाज इंक्लूडेड इन 2018। ठीक है। तो इनके पास पावर होता है, जो सबके पास पावर होता है ना, बात करते फिर रिस्पेक्ट टू द सिविल कोड, शो मोटो एक्शन, हाँ, रिकमेंडेशन तो and ये presentation of the report to the president of India. He lays down the report in the parliament. तो सबके ये सेम है, NCBC, क्वाज़ी NCST जुडिशियल, है। क्वाज़ी हाँ जुडिशियल इनको बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जुडिशरी नहीं है लेकिन उनके पास पावर है सिविल ठीक। कोड। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल इसका कमिटी हाँ, का। वो 1993